Good morning, students. Yesterday, I have explained some exercise and question answer of this chapter. So, one question number 4 is remaining. So, I am explaining this. What is meant by the following terms? Rearing, shearing, and sericulture. Those three terms are explaining. First is rearing, the process of keeping, feeding, breeding, and medical care of useful animals is called rearing of animals. These animals produce one or more useful products for human being. Okay, all of you clear what is rearing? Rearing means the process of keeping, feeding, breeding, and medical care of useful animals is called rearing of animals. यानी किसी भी एनिमल को की रियरिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कीपिंग, उसको रखना, फीडिंग, उसको भोजन देना, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर, और उसकी देखभाल करना, उसको मेडिकल केयर करना उसकी, ऑफ यूज़फुल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स की जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, इज़ कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज rearing of animals. These animals produce one or more useful products. ऐसे animals हमारे लिए one or more useful products प्रदान करते हैं हम सब लोगों को, ह्यूमन बींग्स को. ओके, क्लियर? Second is shearing. Shearing, you have already read the notes. I have explained it. So shearing is the process of removing the fleece of the sheep along with thin layer of skin is called shearing. Okay, the process of removing the fleece of the sheep, वो प्रोसेस जब एनिमल के, शीप के फ्लीस रिमूव किए जाते हैं along with thin layer of skin, वो एक स्किन की पतली सी लेयर के साथ उसके जब हेयर्स या फ्लीस रिमूव किए जाते हैं, this process is known as shearing. Clear? The process of removing the fleece of the sheep along with thin layer of skin is called shearing. Clear? Now come to next, sericulture. Sericulture, the rearing of silkworms for obtaining silk, is called sericulture. The rearing of silkworms, silkworm की rearing करना यानी उनका पालन पोषण. rearing आप पढ़ ही चुके हैं. What is rearing? तो the rearing of silkworms for obtaining silk. silkworm का silk प्राप्त करने के लिए उनकी rearing is called sericulture. जब हम सिल्क वर्म्स को पालते हैं, उनकी कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर पर ध्यान रखते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, उनसे सिल्क प्राप्त करने के लिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेरिकल्चर. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. आई विल सेंड यू अ डायग्राम. यू ड्रॉ दैट डायग्राम इन फ्रंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. आप क्वेश्चन नंबर 4 के सामने एक डायग्राम मैं भेजूंगी कल, तो आप उसको ड्रॉ कर देना. ठीक है? नाउ कम टू कीवर्ड्स. जो कीवर्ड्स इसमें आ चुके हैं वो कीवर्ड्स में भी हैं और यहाँ भी हैं, तो वो मैंने नहीं लिखाए हैं, इसलिए जो मैंने लिखाए हैं आप केवल उतने ही लिखेंगे. फर्स्ट इज कोकून, अ कवरिंग ऑफ थिन थ्रेड that some insects make to protect themselves before becoming adult. This is known as cocoon. What is cocoon? A covering of thin threads. थिन थ्रेड से, पतले पतले धागों से अपने ऊपर कवरिंग करना. दैट सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स अपने ऊपर कवरिंग कर लेते हैं. मेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और उसके वो कवरिंग अपने ऊपर करते हैं जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. बिफोर बिकमिंग एडल्ट, वयस्क होने से पहले, वो बाहर आने से पहले अपने आप को इस टाइप से प्रोटेक्ट कर लेते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज कोकून. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, रीलिंग. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling क्या है? The process of taking out threads
फ्रॉम द कोकून, कोकून से थ्रेड्स को लेना यानी निकालना, फॉर यूज एज सिल्क, और उसे सिल्क की तरह यूज करना, इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. दिस प्रोसेस इज नोन एज रीलिंग द सिल्क. नेक्स्ट इज स्काउरिंग. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays, scouring is done by machines. You have already studied about in your notes. I have explained scouring, shearing, scouring. The sheared skin, the sheared skin of the sheep with hair is thoroughly washed. उनकी जो sheared skin होती है हेयर्स वाली, उसको वॉश किया जाता है टैंक्स में. और किस लिए वॉश करते हैं? बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट. टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, इसको इसकी स्किन से ग्रीस, डस्ट और डर्ट को रिमूव करने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए इसको वॉश किया जाता है. दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग. एंड दिस प्रोसेस, इस स्किन को वॉश करने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग. नाउअडेज, आजकल स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स. ये मशीनों के द्वारा होती है. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ्स आर मॉथ्स whose pupa are surrounded in a silken cocoon. सिल्क मॉथ क्या होते हैं? सिल्क मॉथ्स आर मॉथ्स, ये वो मॉथ्स हैं हुज प्यूपा, जिसमें कि प्यूपा आर सराउंडेड इन अ सिल्किन कोकून, अपने चारों तरफ एक सिल्की कोकून बिन लेता है. नाउ कम टू नेक्स्ट, सिल्क वर्म. अ स्मॉल क्रिएचर विद अ सॉफ्ट बॉडी एंड लेग्स दैट प्रोड्यूस वेरी थिन थ्रेड. अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा कीड़ा विद अ सॉफ्ट बॉडी, जिसके बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एंड लेग्स, और उसकी छोटे छोटे मतलब सॉफ्ट लेग्स होती हैं, दैट प्रोड्यूस वेरी थिन थ्रेड, जो बहुत ही पतला धागा प्रोड्यूस करता है. दिस इज नोन एज सिल्क वर्म. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, सॉर्टिंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप into sections according to the quality of woolen fibers is called sorting. सॉर्टिंग प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले शेयरिंग होती है, फिर स्काउरिंग होती है, उसके बाद सॉर्टिंग होती है. सॉर्टिंग में क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप, शीप के फ्लीस को सेपरेट करना इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग रखना, अलग अलग करना. दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉर्टिंग. According to the quality of woolen fibers is called sorting. So your chapter is completed. Question, answer, exercise and keywords, all things are completed. Okay, thank you students.